Good morning, students. Previous lecture, we saw basic idea of neutralization, right? That I had told you solution. If it's basic, phenolphthalein gives a pink color, and if it's acidic, then it remains colorless. Okay, pink color, basic, colorless, acidic. That is for phenolphthalein. Okay, that is for phenolphthalein. But litmus paper and other indicator like turmeric and China rose petal, they were showing different color with acids and bases, right? So when an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. Means when you mix acid and base with each other, it will neutralize the effect. Means एसिड बेस की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा. ओके, न्यूट्रलाइज मीन्स बोथ विल अफेक्ट सेम इफ इट इज़ टेकन इन सेम अमाउंट, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. न्यूट्रलाइज मतलब कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक. ओके, न्यूट्रल मीन्स ऑन ज़ीरो. पीएच, पीएच मीन्स जो एसिडिक है कि बेसिक है वो पीएच से हम डिसाइड करते हैं, तो उसकी पीएच ना ही ज़ीरो से ज़्यादा होगी ना ही ज़ीरो से कम होगी. 7 अंडर 7 आता है. सो इफेक्ट ऑफ ईच अदर व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन suitable amount. Okay, here suitable amount word is necessary because when both will be taken in suitable amount, then and then only you can see neutralize effect. Both the acidic nature of the acids and the basic nature of the base are destroyed. क्या होगा? एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर बोथ विल बी डेस्ट्रॉयड. मीन्स एसिडिक, उसकी एसिडिटी भी डेस्ट्रॉय हो जाएगी, बेसिक नेचर है वो भी डेस्ट्रॉय हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना ही वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म होगी. ओके, that you have not done experiment, so you won't be able to see that. But what do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. Means in the process of neutralization what will happen? Heat will be evolved. मत involved नहीं होता है, अंदर नहीं होता है, but बाहर निकलता है. Evolved. The evolved heat raises the temperature of reaction mixture and it will raises the temperature. Okay, hope so you are understanding. In neutralization reaction a new substance is formed. अब neutralization reaction में क्या होगा? New substance will be formed that you could see here, salt, called salt. New substance है वो क्या है? That is salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follow. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Okay, first of all, what is neutralization? The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process. Salt and water. Okay, water को आप लिख सकते हो H2O, salt को लिख सकते हो NaCl. Here already it is written over there. सो एसिड एंड बेस. अभी एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस का है सोडियम हाइड्रोक्साइड. आई टोल्ड व्हेन एवर हाइड्रोक्साइड वर्ड विल कम दैट विल शो इट्स बेसिक नेचर. ओके, सो हियर बेसिक सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे लिखते हैं HC और स्मॉल l. यहाँ पे N कैपिटल, A स्मॉल, OH हाइड्रोक्साइड दोनों कैपिटल, बिकॉज ऑक्सीजन डिफरेंट सेपरेट एलिमेंट है, हाइड्रोजन सेपरेट एलिमेंट है, एंड Na मीन्स सोडियम. सो व्हाट वी विल गेट सॉल्ट मीन्स NaCl. सोडियम क्लोराइड को बोलेंगे सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट. एंड वाटर H2O. ओके, this is neutralization process. Means reaction between an acid and base is known as neutralization. Acid and base, but it should be in suitable and equal amount. So we will get salt plus water and with evolution of heat, or heat is evolved in this process. Okay, neutralization in everyday life in digestion.
indigestion means whenever we eat something after that we sometimes suffer acidity problem. Okay, so indigestion मतलब कि digest proper नहीं होता है. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. हमारे stomach के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को केमिकल फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, सी हियर इट इज़ गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यू कैन राइट HCl. Okay, hydrochloric acid helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Too much of acid in stomach cause indigestion. मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, गुजराती में बोलते हैं ना अपचो. अपचो मतलब कि खाना पचा नहीं है प्रॉपरली, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो एसिडिटी हो सकती है. समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, समटाइम पेन भी होता है. टू रिलीव इंडाइजेशन वी कैन टेक एन एंटासिड. एंटासिड मतलब कि एसिड को कम करने के लिए एंटी एसिड, तो उसको बोलते हैं एंटासिड. सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide and it neutralizes the effect of excessive acid. Milk of magnesia means आप जो सोडा पीते हो वो या फिर इनो पीते हो वो है milk of magnesia which contains magnesium hydroxide and it neutralizes the effect of excessive acid. मतलब एसिड अगर ज़्यादा हो गया है तो वो उसकी इफ़ेक्ट को कम करेगा. अंडरस्टूड. सो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. क्या था हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में. हम न्यूट्रलाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं, एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोडा और इनो. एंटबाइट, अब चींटी है वो काटती है तो उस जो काटती है उसके बाद जो उसके मुंह से निकलता है वो क्या होता है, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड. उसके मुंह से क्या निकलेगा, इंजेक्ट, वो बाहर निकालेगी उसके मुंह से एसिडिक एसिड. एसिडिक लिक्विड उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, हमारे स्किन के ऊपर रिलीज होगा उनका बाइट में से. इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. आप को आज से याद रखो, व्हेन एन एंट बाइट ऑन योर स्किन दैट टाइम यू कैन रब मॉइस्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सबके घर पे होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा. उसको केमिकल नेम है उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो इफ़ आई आस्क देन व्हाट इज़ द नेम, chemical name of baking soda, then sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. कैलेमाइन सोल्यूशन के अंदर जिंक कार्बोनेट होगा, बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा. ओके. सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक. अभी सॉइल के अंदर क्या होगा कि एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है. सो व्हाट वी विल डू इफ़ इट बिकम्स टू मच एसिडिक, plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. Plants need neutral effect. Okay, plants won't be able to grow either it is too much acidic or too much basic. It should be neutral. When the soil is too acidic, why? Due to chemical fertilizer been added in the soil, it's treated with the base like quicklime, calcium oxide. Calcium oxide is one type of base or slacked lime. स्लैक्ड लाइम और क्विक लाइम दोनों के दोनों बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्लैक्ड और क्विक लाइम जो चूना होता है उसके साथ में जो प्रोसेस करके जो पानी जैसा होता है, दैट यू कैन से इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट. ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट. सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, एसिडिक है तो क्विक लाइम या तो स्लैक्ड लाइम. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड. दोनों के दोनों लाइम सेम ही है बट ये क्विक लाइम है उसके अंदर थोड़ी कम एसिड बेसिस है तो कम बेसिक सोल्यूशन उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल. ओके, सो ऑर्गेनिक मैटर व्हाट विल डू, इफ इट रिलीजेज एसिड तो न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. अगर बेसिक नेचर बढ़ गया है तो we will add organic matter, otherwise this. फैक्ट्री वेस्ट, वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरी कंटेन्स एसिड. अब फैक्ट्री वेस्ट में क्या होगा, एसिड होगा. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू वाटर बॉडीज़, अगर वाटर बॉडीज़ रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, कहीं पे भी, देन द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म. यू नो, अभी फैक्ट्री वेस्ट अगर रिवर बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल कैन बी डाइड. सो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सब्सटेंस उसमें डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, ओके, ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, क्विक लाइम तो बेस है तो वो हम डालेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी. सो दिस ऑल वर्ड
न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। अगर स्टमक में हो गए तो हम क्या लेंगे, इनो है, सोडा है, उसको क्या बोलेंगे, एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटबाइट में रबिंग बेकिंग सोडा और कैलामाइन सोल्यूशन। सॉइल ट्रीटमेंट में एसिडिक है तो क्विक लाइम और स्लैक लाइम, और एसिडिक बेसिक है तो एसिडिक चीज़ें डालेंगे हम। एसिड्स कौन सा एसिड्स की ऑर्गेनिक मैटर। फैक्ट्री वेस्ट, इन दैट वी कैन ऐड एनी टाइप ऑफ बेसिस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। अंडरस्टूड? So this all about our daily life. Okay, your chapter will finishes. If any doubt you could ask me in our period, and I will give rest of the question solution to write in your notebook. Thank you.